الرحیم المبحث الخامس، یہ ہماری بات چل رہی ہے الباب الثالث فی الغسل میں، کہ جس کی 5ویں فصل ہے غسل میت، اور 5ویں فصل کا مبحث خامس یعنی دفن۔ عبارت پڑھیے، فہیم صاحب آپ پڑھیے۔ جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، والواجب سترہ فی الارض عن الحوام ہاں والسباع۔ ہاں، کہہ رہے ہیں والواجب سترہ یعنی ستر المیت۔ ہاں کہاں چلا جائے گا؟ ہاں جائے گا میت کی طرف۔ ہاں میت کی طرف جائے گا۔ جی چلیے۔ عن کیوں الحوام کیوں کیوں والسباع۔ کیوں کیوں چھپانا چاہیے اس کو مٹی میں؟ والواجب سترہ یعنی واجب ہے کہ ہم میت کو پوشیدہ کر دیں، چھپا دیں، فی الارض زمین میں، ٹھیک ہے، عن الہوا میں، ہوا میں، حوام کہیں گے حامہ کی جمع ہے، یعنی کیڑے مکوڑے حشرات سے بچانے کے لیے، والسباعی اور درندوں سے محفوظ کرنے کے لیے، جی ٹھیک ہے، تاکہ درندے اس کو نہ کھائیں، کیڑے مکوڑے اسے نہ کھائیں۔ اور کیا اس لیے؟ پڑھیے وتم 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 رائحتہ عن الناس۔ وتم رائحتہ عن الناس، ٹھیک ہے، اور اس علی لیے جان کہ تم یتم یعنی چھپانے کے لیے، ٹھیک ہے، تم رائحتہ اس کی بو کو چھپانے کے لیے، کہ جو باڈی سے ایک اسمیل آتی ہے وہ اسمیل لوگوں تک نہ پہنچے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو کیا کیا جائے گا؟ دفن کیا جائے گا۔ 1 نمبر کے حاشیے پہ جاتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فی سائر النسخ وکتم وہو خطا اذ لا یکفی الکتم بلا تم ای دفنین۔ ہاں، کتم کہتے ہیں چھپانے کو، اور تم کہیں گے دفن کرنے کو۔ کہہ رہے ہیں قتل کافی نہیں ہے، صرف اس کو چھپانا کافی نہیں ہے کہ ہم باڈی کو مٹی سے ایسے چھپا دیں، بلکہ دفن کرنا ضروری ہے، تاکہ تم اس کو کہیں گے۔ تو کہا جو قتم ہے، یہاں تک کہ جو میرے پاس شرح ہے اس میں بھی لفظ قتم کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، چونکہ قتم کافی نہیں ہے، تم ضروری ہے، یعنی دفن ضروری ہے۔ وَتَمُّ رَائِحَتِهِ عَنِ النَّاسِ، اور اس کو اس طرح سے دفن کرنا کہ اس کی بو، اس کی مہک لوگوں تک نہ پہنچے۔ اور کس طرح سے لٹائیں گے؟ کہہ رہے عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ، اس کو اس کی دائیں جانب لٹایا جائے گا، دائیں طرف، دائیں کروٹ لٹائیں گے، مُوَجَّهًا إِلَى الْقِبْلَةِ، توجہ کیے ہوئے اس طریقے سے کہ اس کا رخ کدھر ہو؟ اس کا رخ ہو قبلے کی جانب، اور جب اس کا رخ قبلے کی جانب ہو یعنی پوری باڈی، کہاں اشارہ، کہاں رخ کر رہی ہو؟ پوری باڈی ہمارا رخ کر رہی ہو قبلے کی طرف۔ کہہ رہے ہیں والواجب سترہ فی الارض عن الحوام والسباع، کہہ رہے ہیں واجب ہے میت کو چھپانا زمین میں کیڑوں سے اور درندوں سے بچانے کے لیے، وَتَمُّ رَائِحَتِهِ عَنِ النَّاسِ، اور اس کی مہک کو لوگوں سے چھپانے کے لیے، عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ، اس کے دائیں کروٹ، مُوَجِّهًا إِلَى الْقِبْلَةِ، قبلے کی طرف چہرہ کیے ہوئے۔ اب پڑھیے وَيُسْتَحَبُّ۔ جناب ریکارڈنگ نہیں بنائیں گے کیا جناب؟
हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। वयुस्तहब्बु पढ़िए, स्क्रीन शो हो रही है? नहीं, नहीं। तो बोलना था ना आप लोगों को, इतनी देर से क्यों ही नहीं बोला? मैं तो नहीं बना रहे लगे। अब दिखी स्क्रीन? जी। पढ़िए। वयुस्तहब्बु इत्तिबाउल जनाजा हम्म। औ मआ अहद जानिबैहा। औ मआ अहदे जानिबैहा, इत्तिबा कहते हैं पैरवी करने को। पैरवी तब की जाती है जब इंसान पीछे चलता है। कह रहे हैं वयुस्तहब्बु इत्तिबाउल जनाज़ते, मुस्तहब है जनाजे के पीछे चलना। औ या मआ अहदे जानिबैहा, या जनाजे के किसी एक जानिब यानी दाएं जानिब या बाईं जानिब चलना मुस्तहब है। ठीक है। 2 नंबर पे जनाजे पे 2 नंबर है, 2 नंबर पे हम जाते हैं, हाशिए में क्या है? आई अलमश्यु खल्फहा, क्या मतलब? अलमश्य यानी चलना, खल्फहा यानी खल्फल जनाजा, जनाजे के पीछे। कह रहे हैं यहाँ पे देखिए वयुस्तहब्बु इत्तिबाउल जनाज़ते, मुस्तहब है जनाजे के पीछे चलना। औ मआ अहद जानिबैहा, या उसके किसी एक जानिब चलना। व तरबीउहा, या क्या है? तरबीउहा, और क्या मुस्तहब है? कि उसे 4 आदमी चारों जानिब से उठाए। 3 नंबर पे जाएंगे हम, 3 नंबर के हाशिए को जानेंगे क्या है 3 नंबर के हाशिए में। 3 नंबर का हाशिया कह रहा है आई हमलुल जनाजती मिन जवानिबिहल अर्बा, कि हम जनाजे को चारों जानिब से उठाएं। बे अयहमिला मुक़द्दिमहल अयमन सुम्मा मुअख्खिरहल अयमन सुम्मा मुअख्खिरहल अयसर सुम्मा मुक़द्दिमहल अयसर। और किस तरह से उठाया जाए कि पहले दाएं कांधे को उसके कंधा देंगे, फिर उसके पीछे वाले को कंधा देंगे, फिर उसके लेफ्ट साइड के पीछे वाले भाग को, और फिर आगे वाले भाग को बाएं हिस्से के। इसको कहते हैं तनावुब करना। ठीक है, कि आप दाएं यानी 4 लोगों ने उठा लिया, 4 लोगों ने उठाने के बाद जो दाएं तरफ से उठाया था वो आ जाए पीछे, और दाईं जानिब कोई और आ जाए पीछे वाला, फिर पीछे वाला इस साइड आएगा बाएं तरफ पैर की तरफ, और वो उसकी जगह आगे वाला आएगा। इस तरह से आके आके क्या करेंगे? पहले दाएं का आगे का हिस्सा, फिर दाएं का पीछे का हिस्सा, फिर बाएं का पीछे का हिस्सा, फिर बाएं का आगे का हिस्सा। इस तरह से हम जनाजे को कांधा देंगे। समझ में आया किस तरह से? जी उस्ताद। हाँ। अब देखिए जनाब क्या ये एक मत और इसको समझा दीजिए कैसे? ये तीसरी हाशिए वाला। मोबाइल मेरा दिख रहा है? जी जी ना दिख रहा है। इसका ये सराहना है, जैसे कंधा देने वाला यहाँ पे है आगे के भाग में, जी ठीक है? यहाँ से आ जाएगा ये पीछे वाले हिस्से में, जी फिर आएगा इस वाले हिस्से में पीछे के, और उसके बाद यहाँ। और जैसे जैसे इंसान यहाँ से हटा तो यहाँ दूसरा, ये यहाँ आया तो यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ, इस तरह से कंधा देते चले जाएंगे। ये सिलसिला। जनाब हाँ। जनाब आप जो है ये उसके बाएं कंधे के बाएं कंधे से बता रहे हैं, बाएं कंधे से? बाएं कंधे को बता रहे हैं, इधर से होगा ना पहले? नहीं 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 नहीं, नहीं। पहले उधर से नहीं आइए होगा। आप आप मैयत के अपने कंधे को मत देखिए, समझ रहे हैं? ये हमारा कंधा मगर का कंधा दाहिनी तरफ ही रहेगा तो? नहीं 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 नहीं, मैयत के दाहिनी हिस्से को आपको देना है। तो मैयत के जी दाहिनी हिस्से को देंगे तो मैयत का दाहिनी हिस्सा आपके बाएं कंधे पर आएगा। फिर देखना पड़ेगा तो मसाल, मगर उसका ही कि उसका दाहिना कंधा हमारा दाहिना कंधा। हाँ, ये ऐसा कैसे हो जाएगा? उसका दाहिना कंधा आपका दाहिना कंधा, मुमकिन है? सर आगे रहता है मैयत का। वो तो हाँ। लेटा रहता
रहा है। सर आगे रहता है हाँ तो ठीक लेटा रहता मैयत, हाँ, उसका दाएं कंधा किधर रहेगा? लेटा है मसलन, अगर लेटा है दाया कंधा बाएं पे आएगा। बाएं पे नहीं, जी उसके दाएं कंधे पे हमारा भी दाएं कंधा ही आएगा। नहीं, बायां आएगा। वही क्यों आप डिस्टर्ब हो रहे हैं? कैसे बताएं? आपने कहाँ पढ़ा है इस तरह से? आ ही नहीं नहीं, उसको सकता। हम देखें तर्जुमा जाहिल से। मेरे तो आप जैसे बता रहे हैं ना, वो हाँ, हमारे समझ से परे है। आप मोबाइल उठाइए, हम बताएंगे। रुकिए, मैं तौज़ीही खोल देता हूँ ना। हाँ, तुम खोल नहीं, दो मोबाइल फिर। उठाएं आप। हाँ, ये मोबाइल है, ये लीजिए। देखिए ये चीज लेटा हुआ सर आगे है, ठीक। सर आगे है। अब आपने सर जब आपने ऐसे जिधर आगे पकड़ा रहेगा है ना तो दाया कहाँ चला जाएगा? इधर आएगा। ठीक है, हाँ सही है, दाया उसका इधर आया तो वही जनाब, वही तो हाँ, हम भी नहीं कह नहीं रहे नहीं, हैं। नहीं, नहीं, सही 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 सही। जो हमने आपको इधर से बताया है, इनका भी कहना सही है। हाँ, मैयत का दाया आ रहा है ना, तो हमारा भी क्या आएगा? ये इधर से हम शुरू करेंगे, इधर से शुरू करेंगे, इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर आ जाएंगे। नहीं, सही सही सही, दुरुस्त हाँ, कहा आपने, दुरुस्त कहा। मैयत का जो दाया आएगा, ठीक है, यहाँ आ वही तो जाइए। हमने देखा निकाह है निकाह मौजूद निकाह मसाइल में। निकाह 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 निकाह, नहीं नहीं, सही सही सही, समझ में आई, समझ में आया। लिटा के जो समझ में आ रहा है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक मिनट, वसीयत, वसीयत से पहले मिलेगा ना दफन? यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे। नहीं, वैसा ही आएगा। जब मैयत लेटेगी, लेटने के बाद मैयत का राइट साइड चला जाएगा चलने वालों के कहाँ पे? जो चल रहे हैं, मैयत का दायां हिस्सा उनके बाएं आएगा। जैसे हम इस वॉकिंग वॉकिंग मोड में है। हम मैयत, जाहिरन बाएं खड़े रहेंगे, हाँ मगर हाँ हाँ, वही मैयत वही का वही 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 दाहिना मैं कह रहा हूँ। हिस्सा। ये जाके मैयत हाँ, इस तरह से जब है, तो मैयत लेटी हुई है, तो मैयत का राइट साइड जाएगा हमारे चलने वाले के लेफ्ट में, जो वॉकिंग कर रहे हैं उनके लेफ्ट में जाएगा। और जब कंधा देंगे, तो हम लोग जब कंधे के लिए आएंगे तो उसका भी राइट रहेगा और हमारा भी राइट कंधा रहेगा। तो हम इस तरफ यहाँ देंगे और यहाँ से आएंगे पीछे, और पीछे से ऐसे और फिर ऐसे, और इस तरह से जगह बदलती रहेगी। नहीं, सही है फ़हीम साहब, आप दुरुस्त हैं। चूँकि जब हमने पोजीशन लेट के देखी है, तो लेटने के बाद वही आ रहा है। ठीक है, अब आइए देखिए, वज़उहा इंदल क़ब्र इन कान रजुलन, और उसको रखेंगे कब्र के पास। इन कान रजुलन, जब वो मर्द होगा तो कहाँ रखेंगे? वक़िद्दामुहु मिम्मा यलिल क़िबला इन काना इम्रअतन ववज़उहा इंदल क़ब्र, और मैयत को कब्र के पास रखेंगे, यानी उसकी पायती रखेंगे। इन कान रजुलन, जब वो क्या हो? मर्द हो। वक़िद्दामुहु, और उसके सामने की तरफ, उसके आगे की तरफ रखेंगे। आगे की तरफ कौन सा? मिम्मा यलिल क़िबला, जो क़िबले की क़िबले की जानिब है। इन कान इम्रअतन, जब वो औरत होगी। मसलन ये कब्र है, ठीक है, ये कब्र है। इस कब्र में अगर मर्द की मैयत होगी तो उसको यहाँ ला के रखेंगे और यहाँ से कब्र में उतारा जाएगा। और ये क़िबले की जिहत है, तो मैयत को लाके, अगर औरत की मैयत है तो क़िबले की जानिब इस तरह से रखेंगे और यहाँ से साइड से उसको कब्र में उतारा जाएगा। मैयत को पायती से और औरत को साइड से उतारा जाएगा। जनाब, औरत क्यों नहीं जनाजा उठा सकती हैं? हैं? औरत क्यों नहीं जनाजा उठा सकती हैं? मकरूह है, कराहियत है। अच्छा, चलिए देखिए, वा अख़्ज़ुर रजुली मिन क़िबली रअसिही वल मरअतु अरदन, आ गया यहाँ पे। व अख़्ज़ुर रजुले, और मर्द को लिया जाएगा। मिन क़िबले रअसिही, उसके सर की जानिब से।
वलमरअतु अरदन, और औरत को चौड़ाई में, यानी क्या मतलब, मर्द को जो कब्र में उतारा जाएगा ये उसके सर का हिस्सा है, सर का हिस्सा पहले कब्र में अंदर जाएगा, ठीक है, सर की जानिब से उसको अंदर लेकर जाएंगे, और औरत को चौड़ाई में, चौड़ाई का मतलब यानी पूरी बॉडी अर्ज में जो है उसको कब्र में उतारेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले पैर या पहले सर, बल्कि पूरी की पूरी बॉडी को औरत की कब्र में उतारते वक्त हम क्या करेंगे, अर्ज में लेकर आएंगे, साइड का हिस्सा खोल देते हैं, साइड का हिस्सा खोल के उसे कब्र में उतारते हैं। वहफ्रुल क़ब्रि क़दर क़ामतिन औ इला तरक़ुवती, वहफ्रुल क़ब्रि, और कब्र को खोदना, क़दर क़ामतिन यानी एक इंसान की क़ामत की मिक़दार में, इतना कि जो एक इंसान की क़ामत के बराबर हो, इतनी गहरी हो, औ इला तरक़ुवती, या इतनी कम से कम हो कि जो इंसान का कंधा होता है, यानी इतनी गहरी होना चाहिए। ये सब क्या है, मुस्तहब्बात में से है। वल्लहदु अफ़ज़लु मिनश्शक्क़ि बिक़दरी मा यजलिसु फ़ीहिल जालिस, लहद अफजल है शक से। देखिए कब्र दो तरह की बनती है, कब्र बनती है, एक है कि हमारे यहाँ जो रिवाज है, आमतौर पे जो मैंने अपने यहाँ देखा है कि जब बच्चा होता है तो उसके लिए लहद बनाते हैं। लहद उसको कहेंगे कि कब्र हमने खोदी, और कब्र खोदने के बाद साइड में दीवार जो होती है उसमें हम उसके लिए कब्र बनाएं, वहाँ पे हम कुछ मिट्टी निकाल के इतनी जगह कर दें कि बेक़दरी मा यजलिसु फ़ीहि जालिस, फ़ीहिल जालिस, कि एक बैठने वाला उसमें बैठ सके, तो उसको लहद कहा जाएगा। शक जो कहा जाएगा कि आपने ज़मीन खोदी और ज़मीन खोदने के बाद जो हिस्सा सामने नज़र आया हम वहाँ उसको दफन करें। तो कह रहे हैं वल्लहदु अफ़ज़लु, लहद अफ़ज़ल है मिनश्शक्क़ि, शक से, ठीक है। और लहद कितनी होनी चाहिए, बेक़दरी मा यजलिसु फ़ीहिल जालिसु, इतनी मिक़दार में, यानी उसकी बुलंदी इतनी होनी चाहिए कि जब इंसान बैठना चाहे तो उसमें बैठ सके। जी कोई सवाल है किसी का? चलिए तो हम लोग यहीं पर रुकते हैं, इंशाअल्लाह इससे आगे हम लोग कर लेंगे। तो एक मरतबा तेज़ी से मैं इतना दोहरा दूँ, कह रहे हैं वल्वाजिबु सतरुहु फिल अर्दि अनिल हवामी वस्सबा, वाजिब है मैयत को छुपाना ज़मीन में कीड़े मकोड़ों और दरिंदों से बचाने के लिए, वतम मुराहतिही अनिन्नास, और उसकी बू को बंद करने के लिए या ख़त्म करने के लिए लोगों से, अला जानिबिहिल अयमन, इस तरह से कि उसको दाईं जानिब लेटाए, मुवज्जिहन इलल क़िबला, पूरे बदन को क़िबले की जानिब किए हुए, यानी क़िबले की जानिब तवज्जो के साथ। वयुस्तहब्बु इत्तिबाउल जनाज़ते, और मुस्तहब है जनाजे के पीछे चलना, औ मआ अहदी जानिबैहा, या उसके किसी एक जानिब चलना, वतरबीउहा, और चार लोगों का उठाना और उसमें तनाउब करना, यानी जो आगे है उसके दाएं साइड में वो पीछे दाएं के बाएं पायती आ जाए, फिर बाएं के पायती और बाएं के सरहाने, और इस तरह से इंसान कांधा देता रहे। ववदुहा इंदल क़ब्री इन कान रजुलन, और उसको कब्र के नज़दीक रखना जब मर्द की मैयत हो, व क़िद्दामहु, और उसके सामने रखना, मिम्मा यल क़िबला, जो क़िबले की जानिब हो, इनका न इम्राअतन, जब मैयत औरत की हो, व अख़्ज़ुर रजुली मिन क़िबले रअसिही वल मरअतु अरदन,
اور مرد کو لیا جائے گا قبر میں من قبل رأسہ ہی اس کے سر کی جانب سے، والمرأۃ عرضا اور عورت کو عرض میں یعنی سائڈ سے پوری باڈی کے ساتھ، وحفر الاب قبری قدر قامت اور مستحب ہے قبر کا کھودنا ایک انسان کے قد کے برابر، او الی الترقوۃ یا کم سے کم کندھے کے برابر، واللحد افضل من الشق اور لحد افضل ہے شق سے، اور لحد کی مقدار ایسی ہو بقدر ما یجلس فیہ الجالس کہ جس میں بیٹھنے والا بیٹھ سکے۔ والحمد للہ رب العالمین۔